You are currently the only person in this conference. Okay, let's start. And we start from scratch. Hi, Hello. Hello, sir. hello, good evening. Hello. Yeah, hi. Good evening, sir. Anyone who is new, hi, good evening. 1 second, let me log in. Okay, so let's start. And we start from scratch. Any point, any doubts, feel free to ask. Unmute and ask. If no, ask. I will assume that no doubts. Okay, so make sure you ask if any doubts at any point. Why I was expecting more people, let me put in the group. एक्चुअली क्या है ना सर, आई वांट कि आप तो थोड़ा सा बिगनिंग से स्टार्ट करें सर। एक्चुअली जो लास्ट क्लास या हुई है उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं पाई है मुझे। You were जैसे there in सर, the last class? यस। Okay. So one question, just one तो thing. I mean, Abhi यस। so we are gonna start. We new people are gonna join. But going ahead, if you don't understand anything, na, make sure at the same time you unmute and ask. Okay. Later point in time, I mean, it will be difficult to repeat again. Okay. So make sure and don't miss the class and join. And anytime I have always told you can unmute, you can ask if things you think are going faster. Raise same time. Otherwise, 2 plus एक्चुअली later, if you will raise, it will be difficult. Okay. yeah, absolutely, but I think so. I think it seems like you're a bit fast actually, because I'm a beginner and I don't have very Yes. much experience in Salesforce, so it Okay, sure, seems like sure. you're a bit fast, sir. Yes, yes. So at the same time, I'm saying whenever any topic is happening, rather than raising this point 2 class later, raise instantly. If now I am teaching and you feel this 5 minute went faster, raise here only. Okay, at this point in time only. And when anything is asked, make sure to unmute and give a confirmation understood, or if you want any device, I'm okay to repeat any times because it's for you all only, right? So if you're not understanding and if you maintain silence, that will be problem, right? Because every topic is connected. So And if one topic you're not able to understand in the later topic, you will face difficulty. Okay, so it's important to ask. And tomorrow, yes, go ahead. What again? Any other thing you want to say? Sir, one request from my side also. Yes. Yes, actually, I mean, I'm having theoretical knowledge about Salesforce. I mean, yeah, I knew about object, about OWD. I mean, yeah, but Hmm. these all are at the theory level. So, mean for practical point of view, mean is there any kind of assignment that mean there? Yes, it will be there. As we proceed with the topic, for every topic, I will keep sharing assignment and notes that we're Okay, going to okay. practice. So today is the Okay. first session we are starting. So you joined now today only, or have you No, joined no, the no, sir. last? Since first day I am in your Okay, class. So yeah. okay, And sir, okay. one more thing. Mean, can we repeat uh, yeah, actually, validation rule once again? Mean, whenever we are having that topic. Yes, we no, are starting from today is the first session because two new people are joining. Okay, So okay, we are okay, starting from the first session. Okay. okay, sir.
Perfect. And the Thank second thing, going ahead, because nothing will be repeated again and again. So if any doubt, any topic is being taught, na, when I ask, please be engaging. Make Sure, the sure. session more engagement oriented. And the same time And you have to raise, okay, at the same time in and the class. and Ashish sir, we are comfortable in Hindi as well. If you are no I am comfortable in both language, but सब लोग हिंदी yeah समझ सकते हैं. I need a note from my हाँ परिवार. हाँ सर, यहाँ तो सब Okay. समझ ही लेंगे सर. हाँ So कोई मीन दिक्कत नहीं एक सर. एक Okay. एक बार हम पूछ सकते हैं, मीन इफ Yes, एवरीवन yes. इज If any, कंफर्टेबल इन. अगर किसी को दिक्कत है हिंदी से तो you just raise it right now in the chat. Then if that's सबको हिंदी चाहिए तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं, ठीक है. सो गाइस, वो ठीक द है. कंसर्न इज कि इंग्लिश थ्रू वाले आउट को इशू इंग्लिश नहीं रखना होगा. है या हिंदी इंग्लिश दोनों रखना है? किसी को डाउट है तो अभी आप बोल सकते सर दोनों चलेगा. हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मिक्स कर सकते हैं. कोई इशू नहीं है. हैं. ठीक है, ओके, नहीं चलेगा. सर, उसमें एक्चुअली ये है ना सर कि ये अच्छा पॉइंट रेज किया है, उसमें थोड़ा हमें और ज़्यादा क्लियर होगा सर. ओके. हाँ. ठीक, Actually, हिंदी sir, इंग्लिश both guys. earlier So there was actually, someone who based out in Chennai, Tamil Nadu, or Bangalore side, they prefer English only. So we can check with everyone because in Yes, previous yes, sir. class, Aditya was just preferring English only. yes. Yes. So if Yes, everyone That's is why. comfortable, then fine. Anyone, किसी और को कोई दिक्कत है हिंदी इंग्लिश से? You can this is the time. Otherwise, I will do both हिंदी इंग्लिश. ठीक है. I think no one is raising doubt, so let's start. And किसी का फर्स्ट सेशन है आज के सेशन में? Anyone whose first session it is? Okay. I have two confirmation to keep in हिंदी इंग्लिश दोनों में रखना है, ठीक है. दोनों हिंदी इंग्लिश में रखते हैं. किसी को अगर इशू होगा तो प्लीज रेज इट. बट आई एम कीपिंग, लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग, वेर एवर यू विल वर्क ना, तो आपके क्लाइंट्स फॉरनर्स होंगे, तो वर्क ऑन दैट. इफ अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना किसी के लिए तो उस पर आप लोग काम भी करते हैं, ठीक है. बिकॉज योर क्लाइंट विल बी फॉरनर्स, तो वहाँ आपका एक्सपेक्टेशन हुआ कि आप इंग्लिश में बात करें, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो इवन सेल्सफोर्स के बारे में बात करें उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सीआरएम. जो लोग पहले से ज्वाइन कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, बट जो लोग न्यू हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम टेक इट एज अ डे वन सेशन. सो व्हाट इज सीआरएम? अगर हम सीआरएम की बात करें तो किसी भी बिजनेस के लिए, इफ यू फील अबाउट एनी बिजनेस, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड? किसी बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत होती है? पहले तो कि यू मस्ट कीप ऑन चेजिंग न्यू लीड्स, सो दैट आप अपना बिजनेस तभी ग्रो कर सकते हो जब नए कस्टमर्स मिले. जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग, उसको ग्रो करने के लिए आपको नए नए कस्टमर्स चाहिए, राइट. सेम वे आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट. बिकॉज अ हैप्पी कस्टमर मीन्स that only indicates also tomorrow onwards ये 10:30 आप लोग ज्वाइन करना सेशन, ठीक है. देयर इज इशू, टाइमिंग कोई और कॉमन नहीं हो पा रहा है, सो दैट्स द ओनली स्लॉट, या फिर ये टाइम रख सकते हैं हम लोग. 10:30 रखना आप लोग, मैं मिस फॉर 2 वीक्स, ठीक है. ओके, सो किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है? कस्टमर का रिलेशनशिप मेंटेन करना, राइट. अब अगर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी होती है? सबसे पहले आपको अपने सेल्स को इंक्रीज करना होता है. सेल्स को इंक्रीज आप तभी कर सकते हो जब आपके जो न्यू लीड्स हैं, जो जिनकी इंक्वायरी आ रही है आपके सिस्टम में, मेक श्योर कि हर एक लीड को प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, देन ओनली योर बिजनेस कैन ग्रो, राइट. जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो उनको आप सपोर्ट भी प्रोवाइड, कस्टमर्स के अकाउंट को मैनेज कर सको, जो भी सेल्स सर्विस रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेसेस है उनको हम लोग ऑटोमेट कर सकें, करेक्ट. तो किसी बिग बिजनेस के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए यू कैन नॉट डू डे टू डे वर्क मैनुअल वे, राइट. बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, सो टू ऑटोमेट दोज थिंग्स आप रिपोर्ट जनरेट कर सको, राइट. सपोज मेरे बिजनेस है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो कि डेली बेसिस पे मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, मंथली मैंने इतने प्रोडक्ट्स को सेल्स किए, मेरा प्रॉफिट का मार्जिन क्या है. अगर कोई केसेस हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं, ऐसे कितने सारे केसेस जो 1 मंथ से ओल्डर हैं, सो वो सारा अकाउंट, वो सारा इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो, राइट.
To manage all these things, this or managing all these things comes under your CRM. That's what we call as CRM. ठीक है? I mean, with the help of any CRM tool, आप lead management कर सकते हो, case management कर सकते हो, analytics कर सकते हो, automations define कर सकते हो. That's why here we are. अभी CRM के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं. SAP है आपका, जोहो इज ऑल्सो ए CRM टूल, और Salesforce भी एक CRM टूल है. बट अगर मार्केट शेयर की वाइज देखो तो CRM में Salesforce का शेयर सबसे ज्यादा है. वन ऑफ द रीजन वाई Salesforce is popular, as you will proceed you will see. इतने सारे ऑटोमेशन फीचर्स हैं Salesforce में कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी यूज केस को अगर आपको डेवलप करना है Salesforce में, इट्स इजियर एज कम्पेयर टू अदर टेक स्टैक. अगर आप .NET जावा में जाओ कुछ भी चीज करने के लिए, यू हैव टू राइट कोडिंग. बट Salesforce में बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हो. इनफैक्ट कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, 50% जो चीजें होती हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, 50% जो चीजें होती है वो कस्टमाइजेशन. ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन वेयर योर एडमिन नॉलेज विल कम इनटू पिक्चर, कस्टमाइजेशन जहां हमें कोडिंग चाहिए होता है. राइट? सो Salesforce, the best part is that सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. टू एक्सेस Salesforce, what all things you need to do? The okay अभिषेक, या थैंक्स. सो Salesforce एक्सेस के लिए सबसे पहले जो चीज करना है आपको, यू नीड टू हैव योर प्लेटफॉर्म. उसको लॉगिन करने के लिए आपको जाना login.salesforce.com पे, यहाँ अपने क्रेडेंशियल्स आप एंटर करो एंड देन यू आर इनटू दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है? टू यूज दिस, Salesforce पर यूजर बेसिस पे आपसे सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है, जो कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट Salesforce प्राइसिंग मॉडल, दैट्स करना है वो आपका क्लाइंट डील करेगा. तो जो भी आप प्राइसिंग मॉडल ले रहे हो, जो एडिशंस क्लाइंट आपका लेंगे बेस्ड ऑन उनके कितने यूजर्स चाहिए, उनको कितना स्पेस चाहिए, स्टोरेज एंड ऑल थिंग्स, दैट्स हाउ Salesforce डिसाइड्स दिस. ठीक है? बट हमारे लर्निंग के लिए हमें जो Salesforce इंस्टेंस यूज करना है, हम लोग फ्री ट्रायल और क्रिएट कर सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है? उसके लिए हाउ यू विल सेट अप योर फ्री ट्रायल और, यू गो टू दिस साइट developersalesforce.com/sign up. यहाँ जाना है एंड इस वाले साइट पे जाके आप साइन अप कर देना. वर्क ईमेल में अगर आप वर्किंग हो तो अपना वर्क ईमेल देना. अगर आपका यू आर नॉट वर्किंग, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी यू प्रोवाइड दैट. वर्किंग हो तभी अपना वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना. तो उससे ये होगा कि Salesforce will send a credentials details onto that email. आपके ईमेल पे credentials details Salesforce प्रोवाइड करेगा एंड उसी से आपको हमेशा लॉग इन करना होगा. ठीक है? वंस यू लॉग इन टू दिस Salesforce प्लेटफॉर्म, तो आपका Salesforce, दिस इज हाउ Salesforce लुक्स लाइक. ठीक है? अभी व्हाट आर दीज ऑप्शंस, ऑल थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट. अगर इधर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये आपका प्रोफाइल आइकन है. ठीक है? जहां आप अपने प्रोफाइल का डिटेल्स देख सकते हो. ये जो गियर आइकन आप देख रहे हो, दिस इज योर सेटअप. कोई भी Salesforce का फीचर हमें अगर यूज करना है तो उसके लिए हम लोग सेटअप पे ही जाते हैं. हम लोग यू विल क्लिक. ठीक है? एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन फाइंड जितने सारे ऑटोमेशन फीचर्स हैं वो आप यूज कर सकते हो. फिर आपका आता है ये ऑब्जेक्ट मैनेजर. ऑब्जेक्ट मैनेजर इज द एरिया, ये वो प्लेस है जहां से आप अपना ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो. ठीक है? तो Salesforce में बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़े टाइम में. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो Salesforce ने, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? पहले ऑब्जेक्ट्स इज लाइक योर टेबल्स. ठीक है? जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हेन यू हैव टू स्टोर इंफॉर्मेशन, आपको जब डेटा स्टोर करना था तो उसके लिए आप टेबल्स क्रिएट करते हो. राइट? Salesforce में उसके लिए द टर्म दैट वी यूज इज टेबल्स और ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी होता है. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो Salesforce द्वारा गिवन है. कस्टमर्स आर द वन दैट यू क्रिएट. ठीक है? फिर आपका ये टॉप पे आप ये जो 9 डॉट्स देख रहे हो, ये आपका ऐप लॉन्चर एरिया है. ऐप लॉन्चर एरिया में अगर हम जाएंगे तो कोई भी एप्लीकेशन आप Salesforce CRM में डेवलप करोगे तो वो आपके इस ऐप लॉन्चर वाले एरिया पे दिखेगा. ठीक है? टुडे वी विल सी, पहला एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ आप देख पाओगे. फिर ये जो सेटअप है, यहाँ डेवलपर कंसोल आप देखते हो. तो डेवलपर कंसोल इज बेसिकली द Salesforce प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एनी एप्लीकेशन. यहाँ से आप अपना Salesforce इज ऑल्सो नोन एज योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. क्यों? क्योंकि Salesforce डेवलपर इस प्लेटफॉर्म पे, Salesforce इज बिल्ड ऑन force.com प्लेटफॉर्म, और जहाँ से
आप अपना एपेक्स क्लासेस लिख सकते हो, LWC कंपोनेंट लिख सकते हो, फ्लोज, इंटीग्रेशन, कस्टम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, मतलब आप कस्टमाइज एप्लीकेशंस भी खुद के क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेल्सफोर्स आपको वो, देयर इज अ टर्म इन इंडस्ट्री दैट इज यूज कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसका मतलब समझते हैं। प्लेटफॉर्म एज सेल्सफोर्स आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी काम करता है। वाई? बिकॉज एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर आपको कोई भी कस्टमाइज एप्लीकेशंस बनाना है, आप सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके, आई मीन एडमिन में हम लोग फ्लो ऑटोमेशन लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेशंस वी डेवलप, राइट। आई मीन इंटीग्रेशन वी डू इन कोडिंग, एपेक्स क्लासेस लिखते हो, आप LWC कंपोनेंट लिखते हो और उसके हेल्प से आप एक कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हो। सो उसके लिए कोई न्यू दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, राइट। द एंटायर प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स। कोई भी कोडिंग लिखना है यहाँ आप लिख सकते हो, LWC कंपोनेंट हम VS कोड लिख के इसी में डिप्लॉय करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही क्रिएट करेंगे। बेसिकली सारा जो भी सर्विसेज एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो इसी सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे आप बिल्ड करो, राइट। दैट्स व्हाई सेल्सफोर्स ऑल एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज वेल, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? तो एज ए SaaS प्रोडक्ट सेल्सफोर्स को यूज कर सकते हैं। अभी जैसे आपने कोई एक एप्लीकेशन बना दिया सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जो इंड यूजर्स हैं वो तो डायरेक्टली आएंगे। आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, दैट्स व्हाट इज बेसिकली एन इन प्रोडक्ट, एन इन एप्लीकेशन दैट यू बिल्ड। अभी जो आपके इंड यूजर आएंगे, सेल्स टीम वाले हैं या सर्विसेज सपोर्ट वाले हैं, ऑल दे विल कम, वो सिर्फ इसी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो दे आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, राइट, दैट यू बिल्ड ऑन दिस सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। सो दिस इज योर SaaS। कोई भी एप्लीकेशन जो आप बिल्ड करो सेल्सफोर्स में, ये जो लीड्स, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टेक्ट अकाउंट के ऑप्शंस दे रहे हो, यहाँ से आप डैशबोर्ड्स they can handle, they're not building anything, rather as an end user आप इसको यूज कर रहे हो। तो Salesforce acts as a SaaS as well. So software as a service means कोई एक end software ऑलरेडी बनाया है, आपके end user उसको यूज कर रहे हैं। We do that, right? Salesforce में आप एप्लीकेशन बनाते हो जो end users के लिए होते हैं। प्लस एज ए डेवलपर हम लोग Salesforce प्लेटफॉर्म पे we build custom applications। तो Salesforce ने वो प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई Salesforce इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज वेल। अनदर टर्म इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। Salesforce आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब कि लेट्स से कि जैसे वर्चुअल मशीन्स होते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड है, Salesforce वैसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। NVIDIA या कोई डेस्कटॉप ऐसा, नथिंग यू गेट। सो दिस इज नॉट योर। अब गूगल जो है वो कंप्यूट इंजन प्रोवाइड करता है APIs के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एजोर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन्स, उनको आप कंसीडर कर सकते हो एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। जो ये पोर्टल आप देख रहे हो, ये Salesforce का, दिस इज योर लाइटनिंग इंटरफेस। व्हाट डू आई मीन बाय लाइटनिंग? तो लाइटनिंग बेसिकली आपका एक UI एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये जो लुक एंड फील आपका दिख रहा है स्क्रीन का, दिस इज योर लाइटनिंग। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय Salesforce जर्नी, Salesforce ऐसा नहीं दिखता था। Salesforce आपको क्लासिक में था। क्लासिक में आपका कैसा UI नेविगेशन था? तो अभी अगर आप जाओगे अपने प्रोफाइल आइकन पे, किसी भी टाइम पे आपके पास ये ऑप्शंस है टू स्विच टू Salesforce क्लासिक। अगर इस बटन पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, एंड व्हेन यू कम ओवर हियर, यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऑप्शंस पे अगर मैं सबसे पहले क्लासिक में देखूँ कि आपका UI का लुक एंड फील जो है ना, इट्स नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। दूसरी चीज, क्लासिक में आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, सपोज मैंने इस अकाउंट पे क्लिक किया, मैंने एक नया पेज लोड हुआ। इफ यू क्लिक ऑन न्यू, ये जो फॉर्म लोड हुआ ये भी अगेन एक नया पेज है। बेसिकली क्लासिक में कोई भी एप्लीकेशन जो हम लोग सेटअप करते हैं, ये आपका एक मल्टी पेज एप्लीकेशन है। बट एज कम्पेयर टू दिस, अगर आप लाइटनिंग में जाते हो, तो लाइटिंग में हम लोग जो एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, अगर लाइटिंग में मैं किसी ऑप्शन पे जाऊँ, सपोज मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ, व्हाट इज अकाउंट, विल टॉक। अकाउंट्स पे जाते हो, यहाँ देखो ये कंटेंट आपका इस पेज पे लोड हो गया, ठीक है। इस डिटेल्स टैब पे मैं जाता हूँ, अगेन दिस इज लोडेड ऑन टॉप ऑफ द सेम पेज। ये मैंने एक न्यू कॉन्टेक्ट का ऑप्शन किया, जो पॉपअप आया, ये भी आपका इसी पेज पे सेम है। यू ओपन योर AI एजेंट्स, आई मीन दिस इज एजेंट कोर्स व्हिच इज आउटसाइड दिस कोर्स, बट ये AI एजेंट भी जो है इट्स एन एम्प्लॉय एजेंट।
This is also on top of your Salesforce platform itself. ठीक है, I mean on top of the same page itself. So basically in Classic we create single page applications. Classic में हम लोग single page applications develop करते हैं. इसे कंपेयर में सॉरी लाइटनिंग में हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, बट आपका जो क्लासिक था वहां आप मल्टी पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो. ठीक है. दूसरी बात, अगर आप जब प्रोजेक्ट में जाओगे तो इट्स नॉट दैट डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्शन इंस्टेंस जो है आपका सेल्सफोर्स उसमें आप काम करोगे, उसमें आप बिल्ड फीचर्स करोगे. नो, हमें प्रोडक्शन इंस्टेंस पे प्रोडक्शन फीचर्स में डायरेक्टली काम नहीं करते. रादर यू वर्क इन द सैंडबॉक्स. सैंडबॉक्स क्या है? आई मीन इन द पेड एडिशन ऑफ सेल्सफोर्स. सेल्सफोर्स आपको ये जो है डेवलपर एडिशन है. तो दिस बेसिकली जो आप कमर्शियल लाइसेंस सेल्सफोर्स का लेते हो तो वहाँ आपको सेल्सफोर्स गिव्स यू सम सैंडबॉक्सेस. लाइक हमारा जो प्रोजेक्ट का लाइसेंस है 100 सैंडबॉक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. तो यूजुअली टीम क्या करती है कि एक फुल कॉपी सैंडबॉक्स क्रिएट करते हैं विच इज लाइक अ यूएटी एनवायरनमेंट. वो एग्जैक्टली आपका प्रोडक्शन जाता है, प्रोडक्शन का सारे डेटा का डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे होगा, सारा आपका जो मेटा डेटा सारा कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स उसमें रहता है. सबसे लोअर एक डेवलपर सैंडबॉक्स होता है. प्रोडक्शन के सारे फीचर्स होंगे, डेटा नहीं होगा. डेटा आप डमी क्रिएट करते हो और वहाँ आप फीचर करते हो. जैसे कोई फीचर आप बिल्ड कर देते हो, डेवलप करते हो, उसके बाद आप उस इन्वायरमेंट से जो हायर इन्वायरमेंट है आपका सैंडबॉक्स, अपर सैंडबॉक्स, यूएटी सैंडबॉक्स, फुल कॉपी उसमें डिप्लॉय करते हो. और तब फिर फाइनली सारी टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगी. टेस्टिंग टीम के बाद, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद, तब जाके वो प्रोडक्शन में जाता है. ठीक है, दैट्स हाउ वी डू. सो बट ये जो आपका इंस्टेंस है इट्स फ्री इंस्टेंस. So we have only one instance. यहाँ हम sandbox नहीं create कर रहे हैं, but consider that that's how your life cycle is going to be in the project. Okay. So now, so that's the thing. Let's come to the setup. ठीक है. Like I said, take a use Sir, case and write. how many sandbox are there? It depends on how many licenses, which license you are purchasing. ठीक है. तो आप कितने भी फ्री सैंडबॉक्स कितने मिलते हैं ना, जिससे हमारा जो है वो अनलिमिटेड एडिशन है. तो हमें 100 सैंडबॉक्सेस का लाइसेंस हमारे क्लाइंट ने परचेज. सर सैंडबॉक्स होता क्या है? आई मीन सैंडबॉक्स इज बेसिकली सेम. ये जो इंस्टेंस है ना, समझ लो कि इट्स अ एनवायरनमेंट, बट ये लोअर एनवायरनमेंट हो गया आपका डेवलपमेंट का, जहाँ पे आप सारा फीचर डेवलप कर रहे हो. ओके. इंस्टेड ऑफ जो लाइव एप्लीकेशंस आपका रन हो रहा है मार्केट में, आप उस लाइव एप्लीकेशन में चेंज ना करके उस लाइव एप्लीकेशन की एक कॉपी है आपके पास. ठीक है. तो आप उस कॉपी पे काम कर रहे हो, उस लाइव एप्लीकेशन से कॉपी पे काम करो. जब उस कॉपी पे सारा डेवलपमेंट हो गया, सारे टेस्टिंग हो गई, क्वालिटी टेस्टिंग हो गई, ठीक है, तब आप अब कैसे कोई भी एप्लीकेशन, गूगल व्हाट्सएप में न्यू अपडेट्स आते हैं ना, राइट. एक व्हाट्सएप आप एज एन इंडिविजुअल यूज कर रहे हो, बट क्या व्हाट्सएप के जो डेवलपमेंट टीम है वो उसी डायरेक्टली वहीं पे काम करती है. नो, अभी देखो नया यूजर का आपका फीचर आया तो उनका एक लोअर इन्वायरमेंट है, सेम जैसा व्हाट्सएप चल रहा है उसकी एक कॉपी है उनके पास. उस इंस्टेंस में वो लोग सारा डेवलपमेंट वगैरह करते हैं. जब सारे टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया उस फीचर को वो लोग लाइव लॉन्च करते हैं, ऐसे डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हैं. सेम चीज आपका सेल्सफोर्स में है. सो प्रोडक्शन इंस्टेंस जो आपका ऑलरेडी रनिंग है सिस्टम में, ठीक है, और सैंडबॉक्स इंस्टेंस जो आपका लोअर इंस्टेंस. अगर और लेमन टर्म में अगर आप समझना चाहो तो समझ जाओ कि प्रोडक्शन समझ लो कि आपका एक रियल बैंक है जहाँ कस्टमर्स हैं, जहाँ उनका पैसा वगैरह सारा स्टोर है. ठीक है. सैंडबॉक्स समझ लो कि आपका एक प्रैक्टिस बैंक है जहाँ पे कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ लर्निंग करने के लिए गए, न्यू फीचर्स की टेस्टिंग करने गए, विदाउट इम्पैक्टिंग द रियल कस्टमर्स. ओके. सो व्हेनेवर यू विल बी वर्किंग इन एनी प्रोजेक्ट आप सैंडबॉक्स में ही काम करोगे. एक कॉपी होगी आपके गेट प्रोडक्शन रेप्लिका की, और उस कॉपी पे आप काम करोगे. जब सारी टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगी तब हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. दैट्स वेयर इट गोज लाइव फॉर द एंड यूजर. क्लियर और कंफ्यूजन? यस. ओके. सैंडबॉक्स में आप कुछ भी क्राइम करो, कुछ भी मिस्टेक्स करो, नो वन केयर. प्रोडक्शन में आपको कभी भी डायरेक्टली डेवलपमेंट करने नहीं मिलेगा. इनफैक्ट आपको एक्सेस ही नहीं दिया जाएगा प्रोडक्शन इंस्टेंस में प्रोजेक्ट में. ओनली यू विल बी वर्किंग इन द सैंडबॉक्स. जब फीचर डेवलप हो जाएंगे यू विल रेज द डिप्लॉयमेंट रिक्वेस्ट, और जब भी आपकी डेवऑप्स टीम होगी तो डू द डिप्लॉयमेंट टू द प्रोडक्शन. ओके.
Yes, sir. Sir, actually क्या I have one more query. Like you said ना कि यहाँ पर जो हमारा होता है लाइसेंस बेस चलता है, like हाँ, essential वाला एक होता है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए यस। कि सो अगर इफ यू यस, सो अगर हम सेल्सफोर्स के लाइसेंसेस के बारे में हम देखना चाहें, and by the way, this is not something that we have to worry. This is something your client will do for you. Okay. So let's see the pricing model of Salesforce and what are the features. One second. ना? तो अगर इधर आप जाओगे तो सेल्सफोर्स के बहुत सारे प्लान्स हैं। ऑन द वे सेल्सफोर्स चार्जेस जो आपको पर यूजर बेसिस चार्ज करता है, ठीक है। Let me find the exact one. यू हैव लाइक आपका अनलिमिटेड एडिशन होता है, प्रोफेशनल एडिशन होता है, डेवलपर एडिशन होता है। सो मार्केटिंग क्लाउड के लिए सेपरेट लाइसेंसेस होते हैं। कौन सा या दिस इज द साइट अवेलेबल। तो हियर इफ यू सी जो सबसे बेसिक आपका जो सेल्सफोर्स का मॉडल है $25 से बेसिक लाइसेंस है। इनफैक्ट सेल्सफोर्स ने लास्ट ईयर दे इंक्रीज ऑल देयर प्राइसेस बाय 10%। बेसिक मॉडल में आप क्या कर सकते हो, सिंपल सेल्स सर्विस, लीड कॉन्टेक्ट अकाउंट आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी इनकम मैनेजमेंट आप कर सकते हो, ईमेल्स वगैरह देख सकते हो, थोड़ी बहुत ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। दिस इज द वेरी बेसिक मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स। आपका फिर $100 का भी लाइसेंस है, इस पर यूजर पर मंथ बेसिस हाउ मच देयर विल चार्जिंग। बट यूजुअली जो हम लोग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं इट विल बी इन हमारा जो लाइसेंस है वो अनलिमिटेड एडिशन का है। आई मीन 350 इट्स मोर नाउ, बट पहले इतना कॉस्टिंग नहीं था। एंटरप्राइज अनलिमिटेड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन या प्रोफेशनल एडिशन होगा। तो अभी ये एंटरप्राइज एडिशंस में जाओगे, अभी अभी का जो सेल्सफोर्स आप ट्रायल ऑर्ग भी क्रिएट करोगे, यू विल नोटिस कि एजेंट फोर्स ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। अर्लियर वर्जन्स में नहीं होता था। सो आपका जो एंटरप्राइज एडिशन वहाँ एजेंट्स फोर्स है। एवरीवेयर यू विल सी इंटेलिजेंस। कोई भी आप वैलिडेशन रूल्स भी क्रिएट करना जाओगे, एक नीचे ऑप्शन होगा इंटेलिजेंस सीआरएम करके। सो आपको वो सारा इंटेलिजेंस एआई इनसाइट भी मिलेगा। दिस इज लाइक लास्ट ईयर सेल्सफोर्स ने ये सारा भी लॉन्च किया। तो दिस इज दैट लाइसेंस। आई मीन ये स्टैंडर्ड सारे फीचर्स एनालिटिक्स वो सारे तो होंगे, प्लस यू विल गेट दिस एआई इंटेलिजेंस एज वेल। अनलिमिटेड एडिशन है, $350 पर यूजर पर मंथ। रिमेंबर दिस थिंग, यूजुअली जब आप सेल्सफोर्स का लाइसेंस जाते हो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं लेता है सेल्सफोर्स, आपको एटलीस्ट 1 ईयर का लाइसेंस आपको प्रोक्योर करना होता है। बेस्ड ऑन हाउ मेनी यूजर्स यू आर गोना यूज, सेल्सफोर्स विल बी चार्जिंग। अब आप एज ए डेवलपर व्हेन यू आर वर्किंग, डोंट कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर अ यूजर इनटू द प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। प्रोडक्शन का लाइसेंस आपको यूजुअली नहीं असाइन होता है। सो व्हेन यू बिल्ड एनी एप्लीकेशन, जो एज एन एंड यूजर जो आपके एप्लीकेशंस वगैरह यूज करेंगे, कितने एप्लीकेशंस आप कितने यूजर्स आप ऑनबोर्ड कर हो उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी के लिए आई मीन। बट ये वो पर यूजर प्राइसेस मौजूद है, बट सेल्सफोर्स यूजुअली सेल देयर लाइसेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेज। आपने जैसे 100 यूजर्स के लिए 2 साल का आपने लाइसेंस दिया तो दे गिव डिस्काउंटिंग। उनका डिस्काउंटिंग मॉडल भी है, कितने ईयर के लिए आप लेना चाह रहे हो। तो यू कैन सी यहाँ सारा कंपेरिजन भी लिखा हुआ है आपका। I mean, the basic one is $25 फ्री एडिशन है, और $100 का जो मॉडल है 174 का मॉडल है। सो व्हाट आर द एक्स्ट्रा फीचर्स दैट यू विल बी गेटिंग। ये देखो आपका जो 150 $175 वाला है, वहाँ पे आपको यू गेट इंटेलिजेंस इनसाइट्स, एजेंट फोर्स, डेटा क्लाउड, ये सारा अवेलेबल होगा। बट एजेंट फोर्स दे डू बेसिस ऑन द टोकन बेसिस।
कितने आप कन्वर्सेशन करो उसके बेसिस पे आपको अवेलेबल होगा। सो सर मेरा this क्वेश्चन है, हाँ तो क्वेश्चन ये है कि सर ये अगर हम इसको लेने जाएंगे क्योंकि अगर एडमिन का कोई अगर यूआई है, सेल्स का इंटरफेस है, तो क्या उसके लिए भी मतलब कुछ कॉस्ट है? क्या आप ये जो दिखा रहे हैं ये सिर्फ डेवलपर का ही है? अगर उसके ये लिए सर डेवलपर, कॉस्ट है ये तो ये हम लोग ये जो हाँ देख हाँ, रहे हैं ये फ्री एडिशन है हमारा सेल्सफोर्स का, ठीक है। अगर यहाँ अच्छा जाओगे आप सेटअप में, फॉर दिस यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, ये आप लर्निंग कर रहे हो। इसका बहुत सारा लिमिटेशन है, जैसे कि इसमें सिर्फ 5 MB तक का फ्री स्पेस है, ओके, जितना, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपने 2000 टू, इफ यू क्रिएट 2000 कॉन्टेक्ट रिकॉल देन ओनली प्रॉब्लम। बट जब रियल प्रोजेक्ट्स आप में काम करोगे ना, लाइक वी हैव 3.2 मिलियन अकाउंट्स रिटेल स्टोर्स, यू कैन नॉट स्टोर 3.2 मिलियन रिकॉर्ड्स। इसमें 2000 रिकॉर्ड करोगे आपका स्पेस खत्म हो जाएगा। So for your learning, whatever you need, that much storage space is sufficient in this edition. I mean your free version, the developer edition. So you are not going to take any of those licenses, enterprise license है वो सब। That's what I am saying. यहाँ आपको देखो नंबर ऑफ यूजर सिर्फ 2 ही क्रिएट कर सकते हो, फ्री एडिशन से सेल्सफोर्स का 2 ही लाइसेंस इसमें दे रखा है आप में, अपार्ट फ्रॉम द एडमिन। बट जो पेड एडिशन होगा, आई मीन there will be more storage space, more records you can create, बहुत सारे फीचर्स होंगे आपका। So that's something your client will be paying because they are running their applications. बट हमारे लर्निंग के लिए जो हम लोग डेवलपर एडिशन क्रिएट करते हैं, इनफैक्ट अब एजेंट फोर्स भी दे, अप टू सर्टेन एक्सटेंट एवरीथिंग इज अवेलेबल जो लर्निंग। और सर डेवलपर एडिशन के अलावा और कोई भी एडिशन होता है जो फ्री में मिलता है? नहीं, फ्री में यही एडिशन आपका डेवलपर एडिशन है। पहले का जो डेवलपर एडिशन होता था, इनफैक्ट लास्ट ईयर तक, वहाँ आपको एजेंट फोर्स का लाइसेंस आप नहीं क्रिएट कर सकते। बट अभी का जो सेल्स फोर्स का डेवलपर एडिशन, आई मीन 7 दिन के लिए सिर्फ ट्रायल सेल्स फोर्स देता है। बट अभी का जो डेवलपर एडिशन है वहाँ आप एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो, मैं एजेंट फोर्स की ट्रेनिंग लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये एजेंट्स बना दिए हैं। इट कैन समराइज एंड सो ये ना पहले आपका नहीं था, ठीक है। सो जब डेवलपर salesforce.com पे जाके आप साइन अप करोगे तो दिस थिंग्स यू कैन इनफैक्ट कम्युनिटी साइट वगैरह भी बना सकते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट यस, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, इफ योर क्लाइंट इज प्रोवाइडेड मी द सम फ्री एडिशन भी मैंने किया, ओके, सो दैट्स द बेनिफिट एंड इट्स एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हाउ योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज गोना लुक लाइक। उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है, ठीक है। ओनली थिंग दैट, आई मीन डिप्लॉयमेंट वगैरह इसमें आप नहीं देख पाओगे, सैंड बॉक्सेस, बट व्हेन यू वांटेड टू अपग्रेड इट फॉर अ बिजनेस पर्पस, वो आप नहीं कर पाओगे। आपकी कंपनी है कोई एंड यू वांटेड टू डू इट, रन योर कंपनी एप्लीकेशन, आपकी कंपनी में 100 कस्टमर्स, उसका डेटा यहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हो, उन कस्टमर्स को ऑटो ईमेल यहाँ से भेजना चाहते हो सेल्सफोर्स का यूज करके, उनकी क्वेरी आ जाए यहाँ से, एक अपना खुद का कम्युनिटी पोर्टल इंटीग्रेट करना, वो सब नहीं कर पाएगा कॉमर्स। बट आपने लर्निंग के लिए कम्युनिटी पोर्टल बना के जो भी आपको सीखना है वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो डेवलपर एडिशन इज द फ्री एडिशन वेयर वी डू द थिंग्स, ओके, दैट इज द थिंग। So, जैसे इसमें अगर हमें वैलिडेशन रूल वगैरह लगाना हो और कोई हाँ, कंडीशंस अगर लगानी है तो हम चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर वो भी सकते कर हो, सकते बोल हैं। तो रहा हूँ एवरीथिंग। मैं सारा कुछ इसी फ्री एडिशन में पढ़ाऊंगा, मैंने तो सेल्सफोर्स का लाइसेंस नहीं दे रखा है। So everything, whatever you have to do for your project, everything you can build over here. Okay. Only you will not be able to scale it. That's the thing. आपके 1 मिलियन कस्टमर्स हैं, 1 मिलियन 3000 कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड, तो उतना रिकॉर्ड का स्पेस नहीं है, तो 5 MB फ्री स्टोरेज स्पेस है, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर योर लर्निंग। यू विल बी मेनली मोस्टली प्लेइंग विद 100 रिकॉर्ड्स, 200 रिकॉर्ड्स। जब मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, जब 2-4 बैचेस 10 बैचेस मैंने दे दिया, तो आई यूजुअली कंज्यूम दैट स्पेस, सो आई क्रिएट अ न्यू org with a new email ID and that I use. So free editions में you have like very less space and all, which is your developer edition, but इसमें आप सारा Apex, LWC, flows, validation, softwall, custom objects, everything you can do. Limitations, small data, small storage, प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं है ये, ओके। मेनली आपका लर्निंग, टीचिंग, ये सब के लिए आप ये यूज कर सकते हो, राइट। So now let's get back and let's do some use cases.
सो लेट्स कम बैक टू अवर रिक्वायरमेंट। जैसे अच्छा और चीज, ये ऐप लॉन्चर में सेल्सफोर्स का एक ऐप एक्सचेंज भी है। ऐप एक्सचेंज इज द मार्केट प्लेस ऑफ सेल्सफोर्स। अभी क्या होता है कि रादर देन बिल्डिंग योर ओन एप्लीकेशन, कुछ कुछ फीचर्स के लिए हम लोग पेड एप्लीकेशंस ऑटो इंस्टॉल, कैसे आप अपने मोबाइल में कोई नया ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, सेल्सफोर्स में भी ये ऑप्शन है। यू कैन गो टू ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज इज द मार्केट प्लेस ऑफ सेल्सफोर्स। कैसे आपका एंड्रॉइड का प्ले स्टोर है, जहां से आप क्लिक करोगे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। सेल्सफोर्स का प्ले स्टोर हो गया ये ऐप एक्सचेंज। बट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर के वो पेड एडिशन है, और सबका करने का काम करने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स में लाइक वी यूज एक्सेलेट फॉर इंटीग्रेशन, बिकॉज हमने क्लाइंट को सोल्यूशन दिया था कि वी बिल्ड आवर ओन कस्टम इंटीग्रेशन, बट हमारे क्लाइंट मेनली एडमिन थे, उनको कोडिंग वगैरह उतना नहीं आता था, तो दे प्रेफर टू प्रोक्योर लाइसेंसेस। एक्सेलेट का लाइसेंस जस्ट $5,000 ईयरली था, जो कि यूएस वालों के लिए बहुत, आई मीन इट्स अ वेरी मीगर प्राइस। सो दे प्रेफर टू डू दैट, सो दैट उनके लिए वो आसान होता rather than paying a developer salary to maintain, and they were mainly admin. So this also happens. I mean, you create your developer editions and then you do those things. So this is the marketplace, जहाँ से आप अपना कोई भी एप्लीकेशन, ये भी प्रोवाइड करता है कि आप एप्लीकेशंस वगैरह डायरेक्टली सेल्सफोर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। That's the thing. So now let's come back to our Salesforce development and do some work. So what is the use case we are going to talk about? I think the palace we know. I will just revise that use case. So let's say you work for a company with operations across different geographical locations, and उन्हें एक ऐसा application चाहिए, एक ऐसा feature चाहिए, so that in that they can capture information about the different candidates. जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका डेटा उन्हें कैप्चर करना है, तो उसके लिए दे वांटेड एन एप्लीकेशन, और उसी एप्लीकेशन फिर हम लोग डिफरेंट फीचर्स वगैरह इंक्लूड करते जाएंगे। वैलिडेशन फ्लो से बहुत सारे ऑटोमेशन करेंगे हम लोग, फ्लेक्सी पेजेस, रिकॉर्ड पेजेस, वो सब कुछ हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सेट अप आवर वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इन सेल्सफोर्स। लाइक आई सेड, सेल्सफोर्स में कुछ भी अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको सेटअप में ही जाना पड़ेगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इन सेटअप। तो इधर जाते हैं एंड सेटअप पे करेंगे। Now, under this quick search, you have the option App Manager. कोई भी ऑप्शंस, कोई भी फीचर्स अगर आपको सेल्सफोर्स में बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको ये ऐप मैनेजर में ही आना पड़ेगा, आई मीन सेटअप में ही आना होगा। तो इन द सेटअप नाउ आई एम टाइपिंग ऐप। ऐप मैनेजर इज बेसिकली द प्लेस, ये वो प्लेस है जहां से आप कोई भी एप्लीकेशन सेल्सफोर्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लाइटिंग लिखा हुआ है, किसी में क्लासिक, कुछ में कम्युनिटी भी लिखा हुआ है। आई मीन दैट्स फॉर कम्युनिटी पोर्टल जो मैंने क्रिएट किया। तो जो एप्लीकेशन आप क्लासिक में क्रिएट करोगे उनके लिए ऐप टाइप आपको क्लासिक दिखेगा, जो लाइटिंग में क्रिएट करोगे वो लाइटिंग में दिखेगा। बट राइट नाउ सारी इंडस्ट्री जो है आपकी वो लाइटिंग में चली गई है, सो दैट्स व्हाई एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड ओवर हियर, हम लोग अपनी लर्निंग के लिए जो भी पढ़ेंगे वी विल बी डूइंग इन द लाइटिंग एप्लीकेशन ओनली, बिकॉज जिस प्रोजेक्ट में आपको असाइन हो गए वहाँ आपको लाइटिंग में ही काम करना होगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। ये क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप जो है वी डू फॉर द इंटीग्रेशन इन डेवलपमेंट वी डू। So let's click on new lightning app and give your applications any name. Let's say I'm just giving it a name for any name. Let's say calling it train. You give whatever name your client is giving you to provide, and then you can specify. Logo, अपने एप्लीकेशंस के लिए अगर आपको कोई लोगो वगैरह है आपकी कंपनी की ब्रांडिंग के लिए, you can install that logo. I'm keeping it blank. Click on next. Navigation wise, you can see here you have two types of navigation. आपका स्टैंडर्ड नेविगेशन है और एक कंसोल नेविगेशन है। दोनों का डिफरेंस क्या है? अभी स्टैंडर्ड नेविगेशन में बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट एवरीथिंग, जो भी आपके ऑप्शंस है वो स्टैंडर्ड नेविगेशन में साइड बाय साइड है, जैसे वन आफ्टर दी अदर ऐसे दिख रहा है ना, वैसे आपको दिखेंगे। ठीक है, बट अगर वही हम कंसोल नेविगेशन में जाएंगे, इधर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, So what happens in console navigation, and अगर मैं कोई भी कंसोल एप्लीकेशन से यहाँ क्रिएट करता हूँ, let's say sales console मैंने ओपन किया। So in
इन एनी कंसोल एप्लीकेशन, किसी भी कंसोल एप्लीकेशन में आपके जो ऑप्शन है वो ऐसे आएंगे, वन बिलो दी अदर, ठीक है, साइड बाई साइड में नहीं आएंगे। तो आपको कंसोल, यूजुअली सर्विसेज में हम लोग कंसोल क्रिएट करते हैं, बट अगेन ये आपको बताया जाएगा अगर आप इफ यू आर लकी ना टू स्टार्ट इन एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है, तो दैट यू विल बी टोल्ड कि आपको कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करना है या फिर स्टैंडर्ड नेविगेशन वाला क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो भी क्रिएट करना चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट स्टैंडर्ड नेविगेशन ओनली, सो हियर वी गो, सेलेक्ट स्टैंडर्ड नेविगेशन, सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर्स, हियर यू कैन सी बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स में आप जो भी एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो दैट विल बी सपोर्टेड इन बोथ योर डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल वर्जन। लाइक हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है, देयर हमारे जो इंड यूजर्स है फील्ड फोर्स, वो टैब यूज करते हैं यूजुअली, सो दे कैन रन द सेम सेल्सफोर्स एप्लीकेशन इन द टैब एज वेल। ऑटोमेटिकली लेआउट्स एंड थिंग्स आर गेटिंग एडजस्टेड, यू डोंट नीड टू डू एनी कस्टम थिंग्स। आई मीन व्हेन यू आर बिल्डिंग कस्टम LWC, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कई बार करना पड़ता है फॉर मोबाइल लेआउट इन सम इंस्टेंसेस जब हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं, बट यूजुअली इट्स सेम। आई मीन CSS क्लासेस में थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। सो लेट्स क्लिक ऑन नाउ यूटिलिटी आइटम्स। सेल्सफोर्स में ऑलरेडी इनेबल्ड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेनी फीचर्स आर देयर। सो लाइक रिपोर्ट्स एनालिटिक्स का है आपका ऑप्शन है, और भी जो दूसरे ऑप्शंस हैं अपने एप्लीकेशंस में। डू यू वांट इट टू इंक्लूड समथिंग? आई डू नॉट वांट, मुझे कोई भी ऑप्शंस इंक्लूड नहीं करना है। व्हाट वी विल डू, हम लोग अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो डोंट इंक्लूड एनी ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अवेलेबल आइटम्स, हर एक एप्लीकेशन में आपका एक होम टैब होता है। मेरे भी एप्लीकेशंस में आई वांटेड टू हैव अ होम टैब, सो आई एम गोना इंक्लूड अ होम टैब ओवर हियर, ठीक है। सो इधर जस्ट जाना, क्लिक ऑन, what happened, 1 second, screen got lost. It's loading, wait for it. So let's come back. Let me share. So here you come. Let me close this. Include the first home tab option over here. दूसरा some another home gate. It's not your home tab. So include home. Click on next. अवेलेबल प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स इज अ फ्यूचर टॉपिक जो हम लोग सिक्योरिटी टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का टर्म यूज हो रहा है, मिल रहा है, उसका मतलब समझ जाते हैं, थोड़ा लेते हैं। प्रोफाइल्स आर लाइक योर डिपार्टमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है। हर एक यूजर्स की आप किसी भी जैसे जो IT डिपार्टमेंट में है, दे कैन नॉट एक्सेस अकाउंटिंग रिलेटेड स्टफ, राइट। आपके अकाउंटिंग टीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में है, वो IT रिलेटेड चीजों में दे कैन नॉट एक्सेस, ओके। एग्जैक्टली सेम थिंग हियर इज इन द प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट में काम करो, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, तो कौन से यूजर्स को लिए वो एप्लीकेशन क्रिएट करो, कौन से प्रोफाइल वाले के लिए, वो आप सेलेक्ट करोगे। आई मीन एप्लीकेशन का हम लोग एक्सेस डिफाइन करते हैं। मैंने अभी जो ये ट्रेनिंग एप्लीकेशंस बनाई है, एवरीवन शुड बी एबल टू एक्सेस, नो, कुछ सर्टेन यूजर्स हैं जो कि इसको एक्सेस करेंगे। We will talk about profiles in details in security topics. So as of now, don't pay attention on this point. जब आप प्रोफाइल यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप सेलेक्ट करो यहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली द डेवलपर्स, इंडिविजुअल्स जो होते हैं। जब अपना developer.salesforce.com/signup में जाके when you will set up your application, so वन यूजर विथ योर नेम विल ऑटोमेटिकली भी क्रिएट हो जाएगा। आपके नाम से एक यूजर ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा एंड वही यूजर जो है जो सिस्टम एडमिन जैसा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ सेलेक्ट करो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज ए प्रोफाइल, यहाँ सेलेक्ट किया। नाउ आई मीन वाई सिस्टम एडमिन हमने सेलेक्ट किया सो दैट कोई भी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। सो लेट्स क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश। नाउ आवर एप्लीकेशन इज डन। सो लाइक आई सेड, कोई भी एप्लीकेशन आप सेल्सफोर्स में डेवलप करते हो तो वो कहाँ पे दिखता है आपको? ऐप लॉन्चर वाले एरिया में दिखता है, ठीक है। सो वेयर इज माई ऐप लॉन्चर एरिया, तो इस वाले एरिया में आते हैं। यहाँ आपको ये जो 9 डॉट्स दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं एंड व्हेन यू कम ओवर हियर, तो नीचे जब जाते हैं सो हियर यू सी आपका एक नया एप्लीकेशन आ गया। सो यही एप्लीकेशन हमने सेटअप किया। यू ओनली सी दिस होम टैब। अब होम टैब में आपको बाय डिफॉल्ट ये जो चार्ट्स वगैरह जो दिख रहा है या कुछ डेटा वगैरह दिख रहा है, दैट्स बिकॉज कि जब आप अपना ट्रायल इंस्टेंस सेल्सफोर्स का सेटअप करोगे तो सेल्सफोर्स ऑलरेडी आपको कुछ फ्री डेटा प्रोवाइड करता है, just some dummy records for you to learn. So that's why this data you are seeing. Okay. Now go ahead. Sir, I have one query. Like, let's say, sir, I don't want कि ये वाला जो हमारा एप्लीकेशन है वो जो सेल्स के बंदे हैं उनको ना दिखाई दे. I want कि हाँ. this profile should visible to only the developers and the QA. Yes. So what will I do? Yes. That's a valid requirement. So वो हम लोग security topic में cover करेंगे, ठीक है. When we will cover security, so there we will see how you control app visibility, field access. In fact, एक simple रिकॉर्ड भी है ना, उसका भी एक्सेस हम लोग डिफाइन करते हैं. इट्स नॉट दैट कि आपने कोई एप्लीकेशन किया सबको वो एक्सेस हो. दैट्स वाई अभी हमने एप्लीकेशन किया, मैंने जस्ट सिस्टम एडमिन सेलेक्ट किया क्योंकि हमने अभी सिक्योरिटी टॉपिक पढ़ा ही नहीं. तो जब सिक्योरिटी टॉपिक आएगा सो विल कवर दैट. तो यू कैन कंट्रोल, यू नीड टू क्रिएट प्रोफाइल्स में उस एप्लीकेशंस का देना होगा. क्यूए का अलग प्रोफाइल होगा, आपका डेवलपर्स का अलग प्रोफाइल होगा, सेल्स वालों का अलग प्रोफाइल होगा, अकाउंटिंग टीम का अलग प्रोफाइल होगा. जो यूजर्स उस टीम के होंगे उनको वही टीम में देना. अब अकाउंटिंग वाले बंदे को ये एप्लीकेशन नहीं यूज करना तो उसके प्रोफाइल में वो एप्लीकेशन का एक्सेस आप नहीं दोगे, ठीक है. बट ऑल दीज थिंग्स, ये कैसे प्रोफाइल सेटअप करते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे कंट्रोल करते हैं, फील्ड एक्सेस कैसे कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज व्यू ऑल मॉडिफाइल, वो सारा चीज हम लोग जो आई मीन वी हैव अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी उसमें कवर करेंगे, ठीक है. सो दैट पॉइंट विल से, बट दैट्स अ वैलिड सिनेरियो दैट वी से. सर वहाँ पे रोल्स भी पढ़ेंगे क्या हम कि प्रोफाइल एंड रोल्स में क्या मतलब? एवरीथिंग आप अपना एडमिन वाला देखोगे सिलेबस में लिखा हुआ है. ये OWD या प्रोफाइल्स, परमिशन सेट, रोल बेस्ड हायरार्की, सिक्योरिटी शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग, फील्ड लेवल एक्सेसिबिलिटी. तो ये सारी चीजें जब सिक्योरिटी में है देयर वी विल से. ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में सपोज आपके 100 यूजर्स है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, बट सेल्स के सारे 100 यूजर्स को सब कुछ तो नहीं दिखेगा. हो सकता है कि कुछ लोग सुपरवाइजर हो, मैनेजर्स हो, उनका एक्सेस प्रिविलेज ज्यादा होगा रादर देन जो आपके जूनियर एम्प्लॉय होंगे, करेक्ट. सो देयर योर रोल विल आल्सो कम इनटू पिक्चर. सीनियर्स को ज्यादा एक्सेस होगा बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड हायरार्की, जूनियर्स को कम एक्सेस. हाँ सर, वो रोल्स हायरार्की बेस के अकॉर्डिंग होगा शायद. yes we do role based hierarchy. So how to set up roles and all, कैसे कंट्रोल करते हैं वो सब हम लोग करेंगे सिक्योरिटी टॉपिक, ठीक है. ठीक है, थैंक यू. ओके. सो हमने अपना एप्लीकेशन सेटअप किया बट इट्स अ ब्लैंक एप्लीकेशन, वी डू नॉट हैव एनी फीचर्स. सो नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड सम फीचर्स इन दिस एप्लीकेशन, ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू आवर यूज केस. अगेन आई एम सेइंग अभी ये जो एप्लीकेशन हम प्रिपेयर करेंगे थ्रू आउट अवर एडमिन, अगर कुछ डेवलप करें तो डेवलपमेंट में भी यहाँ से हम लोग फीचर्स डेवलप करते हैं. आप ये एप्लीकेशन दोगे इंडिविजुअल को. इंडिविजुअल जब वो लॉगिन करेंगे ना सेल्सफोर्स में तो उनको सिर्फ यही चीज दिखेगी, ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो ना, दैट्स इट. दोज इंडिविजुअल्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेस योर सेटअप या आपका ऑब्जेक्ट्स बैकएंड में कैसा है या कुछ नहीं. कैसे आप जोमेटो का फूड डिलीवरी ऐप ओपन करते हो, यू डोंट सी कि जोमेटो ने बैकएंड में कैसे ऑर्डर ऑप्शन किया है, पेमेंट गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर किया है, कैंसिलेशन कैसे किया है, कैसे वो डिलीवरी राइडर को असाइन हो जा रहा है, कैसे रेस्टोरेंट को असाइन हो जा रहा है, नथिंग, राइट. You just use it as an end user, as a feature. Think of it like this is that platform. Your Salesforce आपका वैसा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है. इस प्लेटफॉर्म को end users यूज करेंगे to do their, I mean जो Salesforce के internal users to do run their applications into. बैंक के भी applications I have seen. I mean like we are doing one project of Commonwealth Bank of Australia and in my last Accenture stint. So वहाँ पे CBA का जो प्रोजेक्ट था तो उनका बैंक का रिपोर्टिंग टूल वाज रनिंग इन द Salesforce, जो सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल था. सो
ये एप्लीकेशन जो अभी आप लोग बिल्ड करेंगे धीरे धीरे स्लोली विद डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, दैट एप्लीकेशन विल बी यूज्ड बाय एंड यूजर, ठीक है। आप बैकएंड में बैकएंड टीम हो, डेवलपमेंट टीम हो, यू आर एक्सेसिंग द बैकएंड फीचर ऑफ सेल्सफोर्स एंड बिल्डिंग थिंग्स, ओके। सो दैट्स द थिंग। सो अभी ये एप्लीकेशन तो हमने सेटअप किया, बट दिस इज अ फ्रॉम ब्लैंक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में कोई फीचर, कोई भी ऑप्शंस नहीं है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड सम। सो कमिंग बैक टू द यूज केस, the use case which I am talking about, हमें एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए so that the different applicants who are applying for the job, हम उनके इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके लिए जो भी वैलिडेशन वगैरह, जो भी सिनेरियोज वगैरह होंगे, वो सारा हम लोग बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक ऑप्शन चाहिए, लाइक आई सेड, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको सेल्सफोर्स में स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, अदर टर्मिनोलॉजी, वी रेफर इट एज टेबल, हम लोग उसको टेबल्स कहते हैं। बट अगर आप सेल्सफोर्स के टर्मिनोलॉजी में आओ, सेल्सफोर्स के लैंग्वेज में आओ, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट टेबल, आपका स्टोरेज एरिया जहाँ पे स्टोर करोगे। हमें चाहिए एक, अभी सेल्सफोर्स में आपके ऑब्जेक्ट्स भी दो टाइप के, स्टैंडर्ड और कस्टम। स्टैंडर्ड जो है वो वैसे ऑब्जेक्ट्स है जो कि सेल्सफोर्स में, रेज हैंड अंकित, यस अंकित, टेल मी एनी डाउट? नहीं वो पूछ लिया सर, वो रोल्स वाला ही पूछ रहा था मैं। अच्छा, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी सेल्सफोर्स में सो वी नीड टू हैव दिस एप्लीकेंट ऑप्शन, सो लेट्स गो एंड सेट अप। सेल्सफोर्स में जो आपके ऑब्जेक्ट्स भी हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, कस्टम। स्टैंडर्ड जो सेल्सफोर्स द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। कस्टम जो आप क्रिएट करते हो। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप जाओगे, यूजुअली सेल्सफोर्स बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी देता है, सम कॉमन वी यूज। सीजी क्लाउड वगैरह में कुछ और भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होते हैं। यहाँ हम लोग से सर्विसेज के जो भी मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसका आई विल टॉक अबाउट इन देयर बिजनेस मीनिंग। सो वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कस्टम What are objects? टेबल्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑब्जेक्ट्स इज योर टेबल, जहां आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, ठीक है। अभी सपोज ऐसे सोचो कि आपको एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है। यू नीड टू हैव सम प्लेस वेयर यू विल कैप्चर दिस एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। उसको मैप कहाँ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं टेबल, सेल्सफोर्स के टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसको बोलते हैं। तो आप एक एम्प्लॉय की एंटिटी क्रिएट करो यहाँ पे सेल्सफोर्स में, ठीक है। उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि यू से एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय करके ऑप्शन होना चाहिए ना, जहाँ पे आप ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे। थिंक ऑफ दैट एज ए टेबल और इन सेल्सफोर्स टर्मिनोलॉजी लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज मैंने ये एक एक्सेल शीट ओपन किया, ठीक है। लेट मी लो व्हाट आई वांटेड इन दिस एक्सेल शीट। आई वांटेड टू स्टोर आप सभी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन। लेट्स से आई एम स्टोरिंग or I am starting with my suppose says I am storing the information circuit, mail, Salesforce, okay, take हो गया, and let's say work at this। उसी तरह से I have another student John, let's say 32, mail, C# and he is working at let's say this। I mean what is this? This is your table। ये इंफॉर्मेशन है, यू आर स्टोरिंग समवेयर, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट इज अ टेबल, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में भी रादर देन स्टोरिंग दिस डेटा इन एन एक्सेल शीट, आई विल स्टोर इट ऑन माय सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए वेयर यू विल स्टोर, दैट्स वेयर यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हिच इज व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। सो लेट्स गो टू द सेटअप। मेक सेंस और कंफ्यूजन? Yeah, Ankit, clear what is object? Okay, so no doubt, so let's proceed. Objects, so that's the table, the storage area where you keep your information. So create करते हैं, how you will create, यहाँ जाते हैं। अभी सेल्सफोर्स में जो आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, they are the one that सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे अकाउंट, कॉन्टेक्ट, अपॉर्चुनिटी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कस्टम वो हो गए जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है। So I am going to create an entity, a kind of a storage area or a kind of table, or in Salesforce terminology object, जहाँ पे हम लोग सारे एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है।
तो क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम ऑब्जेक्ट का, तो क्लिक ऑन कस्टम ऑब्जेक्ट। अभी ये वाला एरिया है, दिस इज द फॉर्म यहाँ वेयर यू विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट, ठीक है। लेबल इज व्हाट इंड यूजर इज गोना सी, तो यहाँ पे प्रोवाइड करो आप अपने नेम से, मैंने प्रोवाइड किया सपोज एप्लीकेंट। प्लूरल लेबल वॉट एवर यू वांटेड, सो मैंने प्लूरल लेबल दिया यहाँ पे एप्लीकेंट्स। अच्छा, अभी लेबल इंडिविजुअल इज गोना सी, जो इंडिविजुअल को दिखाई देगा। बैकएंड में आपका नेम स्टोर होता है। नीचे आते हैं, here you go। अच्छा, रिकॉर्ड नेम जो है, रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप सेल्सफोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स आपको ये नेम फील्ड देता है, ठीक है। आई एम गोना यूज दिस सेम नेम, तो यहाँ आते हैं, आई एम गोना यूज दिस नेम। दिस नेम यू कैन यूज, आप इसको एज ए टेक्स्ट फील्ड भी यूज कर सकते हो या ऑटो नंबर। आई विल यूज एज एन ऑटो नंबर, और उसका फॉर्मेट है, तो आई एम गोना गिव इट ए फॉर्मेट लाइक ए हाइफन, इसका मतलब समझते हैं थोड़ी देर में, 000 विद स्टार्टिंग नंबर है 001। विद दिस व्हाट विल हैपन कि अगर इस ऑब्जेक्ट में आप कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करोगे ना, कोई भी डेटा आप क्रिएट करोगे इन दिस ऑब्जेक्ट, सो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली उसको आईडी दे देगा A001, A002, A003, so on. Okay, that's what this meaning of this auto number is. So I'm keeping it this way. अभी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और भी ऑप्शन है, allow reporting activity as of now, जो भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है let it be, and just click on this option save। मैंने सेव किया, you see, let it get loaded here। you हमने तो नाम दिया था एप्लीकेंट, बट सेल्सफोर्स में जब ये इन्फो स्टोर हुआ, when this data got saved, तो आप API नेम देख रहे हो, यहाँ पे नाम क्या दिख रहा है आपको, एप्लीकेंट अंडरस्कोर सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अंडरस्कोर सी? मीनिंग इट्स अ कस्टम, हमने नहीं क्रिएट किया, दिस इज समथिंग दैट, सॉरी सेल्सफोर्स ने नहीं क्रिएट किया, दिस इज समथिंग दैट वी क्रिएटेड, हमने क्रिएट किया। इफ विल गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर ना, जो आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ये मैंने सपोज फॉर एग्जांपल अकाउंट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, ओके। और अगर मैं यहाँ पे ये अकाउंट वाला ऑप्शन अगर मैं ओपन करता हूँ, नोटिस यहाँ पे APNM में अकाउंट ही दिख रहा है, कोई भी अंडरस्कोर सी नहीं दिख रहा है। वाई? ये सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, बट जो आप क्रिएट करोगे, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे। ऐसे काम करते करते समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टैंडर्ड और कस्टम है। आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वहां आपको APNM अंडरस्कोर सी ही दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट वे, इजी वे टू आइडेंटिफाई कस्टम, मींस हमने क्रिएट किया, डेवलपर्स द्वारा क्रिएटेड, ठीक है। सेकंड थिंग, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। व्हाट आर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप? दिस इज योर एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब हुआ कि ये आपका एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अभी कोई एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के एट्रीब्यूट्स क्या आ गया, उसका नाम, उसका जेंडर, उसका एज, उसकी सैलरी, कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है वो, किस कंपनी में वो एम्प्लॉई काम कर रहा है, 2000 व्हाट विल रेफर एज एट्रीब्यूट्स। अभी देखो, हमने ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया, बट अभी तक हमने कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं की है अपने। इवन दो आई हैव नॉट क्रिएटेड, मैंने कोई फील्ड नहीं क्रिएट की है इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में, बट ये देखो कि ये जो 4 फील्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली ये 4 फील्ड यहाँ क्रिएटेड हो गई है। हाउ? पे अटेंशन, इट्स अ क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेल्सफोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, इवन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आपको पता है, क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फील्ड्स इन सेल्सफोर्स। तो स्टैंडर्ड फील्ड्स आपके वो हैं जो सेल्सफोर्स में ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड, सो दीज आर द स्टैंडर्ड फील्ड्स। आंसर विल बी योर नेम क्रिएटेड मॉडिफाइड बाय ओनर, ठीक है। इन अनदर वे दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इज व्हाट आर द ऑडिट फील्ड्स इन सेल्सफोर्स। अब ऑडिट का मतलब क्या है, सेल्सफोर्स में ऑडिट फील्ड्स कौन से हैं? सो ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट मींस समथिंग जो कि आप यूज करते हो टू ट्रैक एनी इन्फो, करेक्ट। तो अगर आप इन फील्ड्स की बात करो, क्रिएटेड बाय की या लास्ट मॉडिफाइड बाय की या ओनर्ड बाय की, व्हाट दिस क्रिएटेड बाय में किस पर्सन ने रिकॉर्ड क्रिएट किया, उसका नाम स्टोर होगा। लास्ट मॉडिफाइड बाय, हु मेड द मॉडिफिकेशंस, आपने सपोज रिकॉर्ड क्रिएट किया बट आई हैव डन द मॉडिफिकेशन, तो वहां पे मेरा नाम कैप्चर होगा। ओनर में यूजुअली जो पर्सन क्रिएट होता है ही बिकम्स द ओनर। वी चेंज ओनर टू क्यू एंड ऑल आल्सो, वी विल टॉक अबाउट इट। प्लस यहाँ पे आपको टाइम स्टैंपिंग भी होती है, किस टाइम पे आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, किसी और ने मॉडिफाई किया, सो एट व्हाट टाइम द मॉडिफिकेशंस वेयर मेड। सो दैट्स व्हाई
अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट आर द ऑडिट फील्ड्स इन सेल्सफोर्स, तो उसका भी द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम. ओके, दैट्स वेयर दीज आर नोन एज योर स्टैंडर्ड फील्ड्स और ऑडिट फील्ड्स. Now till now everyone let me know any doubts, any questions, all of you, or is it clear so far everyone? Okay, I will take that as a yes. If no doubt, so let's proceed. But keep telling if yes, no, anything I need to know. सर Otherwise, मेरा क्वेरी था कि अगर जैसे कुछ भी अगर मॉडिफाई करेगा तो उसमें सर कहाँ पर आएगा वो कि ये मॉडिफाई हुआ अभी है? दिखाते हैं कहाँ पे दिखेगा. इसी फील्ड में कैप्चर होगा. लेट्स क्रिएट इट. तो हमने ये ऑब्जेक्ट तो सर सेटअप एक कर. और सर जितने में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी का फील्ड्स होता है, फील्ड्स एंड हाँ रिलेशनशिप्स होते हैं. हाँ, यस सर, सबका होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट का फील्ड्स एंड रिलेशनशिप होता है. हर एक ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स होता है. ठीक. By the before I show you, अगर आपको let's create and see it. I think we will be able to. जैसे कहाँ दिखेगा आपका क्वेश्चन था ना, तो जैसे अभी अब जाओगे ना रिकॉर्ड पे, कौन सा, तो दिस इज वे यहाँ पे दिखेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ दिखता है लास्ट मॉडिफाइड बाई, क्रिएटेड बाई, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, वो सारा दिखता है. ठीक है? तो अभी हम अपने ऑब्जेक्ट पे भी क्रिएट करेंगे. अभी हमने ये ऑब्जेक्ट तो सेटअप किया, बट वी आर डेवलपर्स, हमें बैकएंड से दिख रहा है. बट एंड को तो बस ये एप्लीकेशन आप एक्सपोज करके दोगे. एंड यूजर जो है बस दे विल ओनली यूज दिस एप्लीकेशन. तो हमें चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको इस एप्लीकेशन में इंक्लूड करें. कैसे इंक्लूड करोगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैब क्रिएट करते हैं. ठीक है, सेटअप में जाते हैं. अगेन कोई भी चीज आपको करनी है तो सेटअप में जाना पड़ेगा. सो लेट्स गो टू द सेटअप. एंड सेटअप में जाके ये आपका जो क्विक सर्च वाला ऑप्शन है, इधर जाके हम लोग टाइप करोगे टैब्स. टैब्स पे क्रिएट किया, क्लिक किया हमने. व्हेन यू कम ओवर हियर टैब्स, तो ये जो एरिया आपका दिख रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट्स टैब्स. ठीक है, दिस इज द एरिया, दिस इज द प्लेस जहां से कि हम लोग आपका कस्टम ऑब्जेक्ट, आई मीन सेल्सफोर्स में बहुत सारे टैब्स क्रिएट करते हैं हम लोग. वेब टैब्स क्रिएट करते हैं फ्लोज के लिए, जो हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीन फ्लो में. लाइटिंग वेब कंपोनेंट टैब्स ये एलडब्ल्यूसी की ट्रेनिंग में हम लोग करते हैं कि वहाँ हम लोग एलडब्ल्यूसी टैब्स भी क्रिएट करते थे. ठीक है, तो अभी इधर आते हैं हम. एंड व्हाट वी डू इज कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स. हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट्स है. एंड हमारे जो मेरा जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसके लिए आई नीड टू क्रिएट अ टैब. तो लेट मी डू व्हाट ओवर हियर. अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एप्लीकेंट्स, एंड उसके लिए हमें टैब क्रिएट करना है. सो लेट मी डू दिस, क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन. सेलेक्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट. यू सेलेक्ट दिस एप्लीकेंट. टैब स्टाइल, अभी रिमेंबर दिस थिंग, सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट बहुत सारा टैब स्टाइल लेता है. अगर आपको एग्जिस्टिंग में से कुछ सेलेक्ट करना है यू कैन चूज. अगर आपको खुद का स्टाइल क्रिएट करना है सो क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ जाके फिर आपको इंसर्ट करना होगा. ठीक है, आई मीन यू कैन go to this locations and you can create. I am going to use anything, so many things. Let's say I choose this computer. ऐसा icon दिखा. Now let's click on. You wanted to add some description, तो अपने टैब के लिए कोई description आपको अगर ऐड करना है आप दे सकते हो. I am giving none. Let's click on next. इधर आते हैं. टैब विजिबिलिटी. अगेन जब हम लोग सेल्सफोर्स में सिक्योरिटी टॉपिक क्रिएट करेंगे, आई मीन कवर करेंगे, तो वहां पे आई विल टॉक अबाउट कि टैब विजिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन होता है डिफॉल्ट ऑन, डिफॉल्ट ऑफ, टैब हिडन. इसका मतलब है एक्चुअली, एंड इट्स नॉट दैट कि ऑलवेज आप डिफॉल्ट ऑन ही क्रिएट करोगे. ठीक है, टैब जब आप क्रिएट करते हो तो इट विल बी गिवन टू यू कि आपको डिफॉल्ट ऑन रखना है कि हिडन रखना है कि डिफॉल्ट ऑफ रखना है. एज ऑफ नाउ हमें पता नहीं है सिक्योरिटी, सो वी विल जस्ट कीप इट डिफॉल्ट ऑन. नीचे आते हैं, लेट्स क्लिक ऑन ऑप्शन नेक्स्ट. ठीक है, इंक्लूड टैब्स. अभी यहाँ पे देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपके सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे हैं. इस टैब को आप किस एप्लीकेशंस में इंक्लूड करना चाहोगे? आई डोंट वांट दिस टैब टू बी इंक्लूड इन एवरी एप्लीकेशन. हर एक एप्लीकेशन में इस टैब को नहीं इंक्लूड करना चाहूंगा. रादर जो मेरा एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन में मैं इस टैब को इंक्लूड करना चाहूंगा. तो कौन सा एप्लीकेशन हमने सेटअप किया है? हमने सेटअप किया है एप्लीकेशन विद द नेम ट्रेनिंग. तो ये ट्रेनिंग वाला सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाके आप सेव कर दो. अभी जैसे ही आप इधर आके सेव करते हो, ठीक है, एंड व्हेन यू कम ओवर हियर
एंड नाउ व्हेन यू रिफ्रेश, तो ये देखो आपको ये ऑप्शंस दिख गया एप्लीकेंट्स का, ठीक है। आई मीन ये न्यू बटन भी दिखे, जैसे आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म भी लॉन्च हो गया। कुछ फील्ड्स वगैरह नहीं दिख रही क्योंकि हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है। वी विल क्रिएट वन थिंग, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, कि इट माइट हैपन, आपको ऐसा इश्यूज आ सकता है। आई हैव सीन पीपल फेसिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज की लेट्स गो हियर। तो यहाँ एक ऑप्शन है आपका सेशन सेटिंग्स में, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन टेक, मेक श्योर, बिकॉज इनिशियली इट हैपेंस दैट कि आप कोई भी नया फील्ड वगैरह क्रिएट करो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता है, यू नीड टू लॉग आउट। ये एक ऑप्शन है आपका, ये इफ यू गो डाउन, कैसे, आई थिंक मेरे में भी चेक है, तो आई एम गोना रिमूव दिस ऑप्शन। इनेबल सिक्योर परसिस्टेंस ब्राउजर कैशिंग, इस वाले ऑप्शंस को आप हटा देना, ठीक है। अदरवाइज समटाइम्स ड्यू टू कैशिंग ऐसा होता है, पीपल फेस दिस इशू कि आप कोई भी फील्ड्स वगैरह क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू कैशिंग इशू वो आपका रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। तो सेव करते हैं, सेशन सेटिंग्स में जाएंगे। अभी आते हैं अपने इस पे, आई डिड क्रिएट दिस एप्लीकेशन, हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, टैब भी क्रिएट किया, एंड उस टैब को हमने अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे इंक्लूड भी कर लिया, ठीक है। बट वी आर नॉट एंड ओवर हियर। हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अपने इस ऑब्जेक्ट के लिए नाउ वी नीड टू सेट अप सर्टेन फील्ड्स। लेट्स डू दैट। हम लोग फील्ड्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अगेन एनीथिंग इफ यू नीड टू डू इन सेल्सफोर्स, व्हाट डू वी डू, हम लोग सेटअप में ही जाके करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द सेटअप एंड देन वी डू दिस। सो गोइंग टू द सेटअप ऑप्शन ओवर, ठीक है। सेटअप में जाते हैं, आपका ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं एंड फिर अपने ऑब्जेक्ट को सर्च करते हैं। क्या नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का, एप्लीकेंट हमने सेलेक्ट किया। इधर आते हो, आपको ये दिख रहा है ऑप्शन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे, इसमें आते हैं एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सेट अप अ न्यू फील्ड। क्रिएट करने के लिए यहीं पे आओगे, न्यू पे आ जाते हैं। अभी जैसे ही मैंने न्यू फील्ड क्रिएट किया, यू सी यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया डेटा टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप? डेटा टाइप का मतलब आप ये समझो, मीनिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांटेड टू स्टोर। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नंबर फील्ड चाहिए, एक ड्रॉप डाउन जैसा कुछ ऑप्शन चाहिए, दैट्स व्हाट डेटा टाइप इज। सेल्सफोर्स में ऑलरेडी बहुत सारा डेटा टाइप्स आपको, आई मीन एडमिन में तो यही आप यूज करो, सारा डेटा टाइप आपके लिए है। किस डेटा टाइप का फील्ड आपको क्रिएट करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गोइंग अहेड एज वी प्रोसीड विद डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे आई नीड टू सेट अप सर्टेन फील्ड्स, सो लेट मी क्रिएट। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट नेम की फील्ड क्रिएट करनी है, ठीक है। तो गोइंग डाउन और इधर आके हम लोग ये ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक्स्ट का, इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट। आई फर्स्ट नेम ये टेक्स्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट हम लोग सर्च करते हैं। अगर आपको काफी लॉन्ग कोई फील्ड लाइक एड्रेस जैसा, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं। बट अपना फर्स्ट नेम ऐसा नहीं कि इट विल बी 5000 characters long, right? It will be maximum 100 200. So I'm selecting text as a field सर data नीचे type. टेक्स्ट एरिया भी तो आ रहा है, टेक्स्ट एरिया रिच एंड टेक्स्ट एन्क्रिप्टेड। Yes, we have those things also, but as I said, सारा हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे बाकी डिफरेंट डेटा टाइप से, ठीक है। ऐसे पूछा है आपको बता देता हूँ, कम एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट मतलब ये आपका 250 कैरेक्टर्स तक का नॉर्मल टेक्स्ट। टेक्स्ट एरिया मतलब लार्जर डेटा चाहिए। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग ये और 1,31,000 तक का आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। टेक्स्ट एरिया रिच, रिच में आपका बोल्ड, इटैलिक, उसका अंडरलाइन, हेडिंग, कलरफुल वगैरह दे सकते हो। इनक्रिप्टेड में कैसे पासवर्ड में टाइप करते हो तो आपका डेटा दिखता नहीं है, वैसा डेटा स्टोर होगा। बट ये हम लोग देखेंगे जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, तो ये सारा इनफैक्ट एट द एंड आप सारा ही डेटा टाइप एक्सप्लोर कर लोगे, ओके। कभी के लिए जैसे जैसे स्लोली वी यूज टू स्टार्ट यू अंडरस्टैंड, तो ठीक है। तो अपने को फर्स्ट नेम कैप्चर करना है, तो फर्स्ट नेम इज व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वी सेलेक्ट टेक्स्ट। ये सारा ऑप्शंस का इसका मतलब है, वी विल सी एज यू प्रोसीड। सो हमने टेक्स्ट लिया यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए। नीचे आते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो फॉर्म है, हियर ओनली यू नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फील्ड, ठीक है।
सो फील्ड का लेबल मैंने दिया, सपोज आई एम गिविंग इट अ नेम कॉल फर्स्ट। लेंथ कितना कैरेक्टर आपको अलाउ करना है अपने फील्ड के लिए, ये दे दो। डिस्क्रिप्शन की फील्ड ऑप्शनल है बट इट्स गुड। जब भी आप कोई फील्ड क्रिएट करते हो तो आप ये भी प्रोवाइड करते हो डिस्क्रिप्शन में, वैसे यूज टू, सो दैट जब आप अपने प्रोजेक्ट में काम करते हो तो यू विल नॉट बी द ओनली पर्सन विल बी वर्किंग, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई फीचर, कोई फील्ड वगैरह डेवलप किया है तो समवन एल्स विल बी वर्किंग ऑन द फीचर्स बिल्ड बाय यू, करेक्ट। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फीचर एंड ऑप्शंस दैट यू आर बिल्डिंग, सो यू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन। सो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, अभी देखो जैसे कि ये एक बॉक्स है, आई वांटेड टू नो इन्फो अबाउट दिस बॉक्स कि ये क्या करता है। राइट हैंड साइड पे आपको ये आइकन दिख रहा है, जैसे मैंने अपना माउस कर्सर इस पे डाला, इससे काइंड ऑफ पॉपअप गेट्स ओपन और इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि दिस टेक्स्ट डिस्प्ले डिटेल्स एंड एडिट पेजेस। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी क्या यूटिलिटी है। उसी तरह से जो आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अपने फील्ड के लिए आपको कोई हेल्प टेक्स्ट वगैरह देना है तो यू कैन प्रोवाइड। अगेन इट विल बी सब्जेक्ट टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट है कोई फील्ड क्रिएट करने का ना या ऑब्जेक्ट सेटअप वगैरह का, तो आपको बताया देगा कि क्या हेल्प टेक्स्ट देना है, नहीं चाहिए तो नहीं देना होगा। तो आई एम गिविंग हेल्प टेक्स्ट, दिस इज बेसिकली इंड यूजर को हेल्प करने के लिए कि कोई फील्ड को देख के समझ जाए कि, बट फर्स्ट टाइम देखिए तो ऐसे ही समझना है कि इसका मतलब फर्स्ट टाइम है, यू प्रोवाइड द हेल्प टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आते हैं, अभी यहाँ पे ये सारा ऑप्शन है। आपको ये जो आपका फील्ड है, आप इसको रिक्वायर्ड फील्ड बनाना चाहते हो तो रिक्वायर्ड क्रिएट कर सकते हो। यस आई वांट दिस फील्ड एज रिक्वायर्ड, तो इसको सेलेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड। यूनिक का भी ऑप्शन है, अगर ऐसा चाहो कि अगर आपने अपने फील्ड को यूनिक मार्क किया तो उसका मतलब क्या होता है। अगर हमने अपने फील्ड को यूनिक मार्क कर दिया तो उसका मतलब ये होता है कोई भी जो दो रिकॉर्ड है हमारे सिस्टम पे, ठीक है, फॉर एनी टू रिकॉर्ड्स फर्स्ट नेम की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। अगर आप चाहोगे भी सेम वैल्यू सेम नेम एंटर करना अपने फर्स्ट नेम के, सेल्सफोर्स विल नॉट अलाउ, आपका एरर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बट फर्स्ट नेम कैन बी कॉमन, तो उसके लिए हम लोग यूनिक नहीं दे लेंगे। एक्सटर्नल आईडी क्या होता है, जैसे हम लोग जब इंटीग्रेशन वगैरह बिल्ड करते हैं ना, मैंने सेल्सफोर्स टू जावा, सेल्सफोर्स टू जीरा इंटीग्रेशन, सेल्सफोर्स टू एसएपी इंटीग्रेशंस बिल्ड किया, एसएपी से कोई फील्ड आ रहा है उसका इनको मुझसे सेल्सफोर्स में किसी फील्ड में मैप करना, तब हम लोग एक्सटर्नल आईडी में मैप करते हैं। बट हम लोग अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स अ डेवलपमेंट थिंग, तो हम लोग इसको ये नहीं मार्क करेंगे। रिपोर्ट टाइप, रिपोर्टिंग में अगर ये फील्ड होना है उसके लिए, और रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जो भी डिफॉल्ट है लेट इट बी। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन अभी अच्छा, फील्ड लेवल एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीजें सिक्योरिटी में आप कवर करोगे, बट रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने जो ये फील्ड क्रिएट की है मैंने इसको एज अ मैंडेटरी फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई सेलेक्टेड इट एज अ मैंडेटरी फील्ड, सो एवरीवन शुड बी एबल टू सी, इसीलिए ये विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऑन है, ठीक है। लेट इट बी, नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव। सेव क्रिएट करोगे आपका फिर से वापस इस स्क्रीन पे आ जाओगे। हमने फील्ड का नाम क्या दिया, फर्स्ट नेम, बट जो बैक सेल्सफोर्स ने फील्ड को स्टोर किया तो सेल्सफोर्स ने किस नाम से स्टोर किया, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर सी कस्टम। अभी जैसे आप इस पे आते हो अपने एप्लीकेशंस पे एट दिस प्लेस, तो नोटिस वन थिंग, जैसे ही मैंने फील्ड क्रिएट किया ऑटोमेटिकली आपके लेआउट पे आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज कि हमने अपने फील्ड को मैंडेटरी फील्ड एज अ मैंडेटरी फील्ड क्रिएट किया था, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस स्टार आइकन। मैंडेटरी क्रिएट किया इसीलिए आपको ये स्टार आइकन दिख रहा है। हमने अपने फील्ड के लिए हेल्प टेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आपने हेल्प टेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई आपको ये आइकन दिख रहा है। इस आइकन पे ये इनको दिख रहा है कि इसकी क्या यूटिलिटी है, हमने बोला इंटर फर्स्ट टाइम। रिकॉर्ड क्रिएट करना है, आप चाहो यहाँ पे यू डोंट नीड टू राइट एनी कोडिंग एंड ऑल, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्रिएट कर दे। सेव पे क्लिक करो, आपका यहाँ डेटा क्रिएट हो गया। आप याद करोगे जब हमने ऑब्जेक्ट सेटअप किया तो व्हाट वी डिड इज, हमने जो ऑब्जेक्ट सेटअप किया हमने वहाँ जो बाय डिफॉल्ट जो नेम फील्ड था उसका ऑटो नंबर सेलेक्ट किया था ना फॉर्मेट 001 से, इसीलिए ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स ने ये एक आईडी जनरेट कर दी मेरे रिकॉर्ड के लिए A001, नाम हमारा ये था। सेकेंड थिंग की
व्हाट आई वाज सेइंग कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स यू सर्टेन स्टैंडर्ड फील्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड फील्ड सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है? तो ये जो आप देख रहे हो, लाइक क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर, ये सारे फील्ड जो हैं आपके स्टैंडर्ड फील्ड है। सो क्रिएटेड बाय का मतलब क्या हो? क्रिएटेड बाय का मतलब हुआ कि किसने क्रिएट किया रिकॉर्ड को, एट व्हाट टाइम डिड दे क्रिएटेड इट। लास्ट मॉडिफाइड का मतलब हुआ कि आपने क्रिएट किया, किसी ने। अभी तो दोनों सेम दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने आई मीन इग्नोर दिस टाइम, मेरे ऑर्ग में टाइमिंग जो है ईएसटी टाइम जोन है, दैट्स व्हाई। बट हियर ये ही आपके स्टैंडर्ड फील्ड्स है, और इसको ऑडिट फील्ड्स भी आप समझ सकते हो। अगर किसी को देखा ना कि ये रिकॉर्ड किसके द्वारा क्रिएट किया गया, दे कैन जस्ट ओपन दिस डेटा एंड दे कैन सी दिस पर्सन हैज क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड एंड दैट्स द थिंग। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू। तो अभी एक ही फील्ड क्रिएट किया, बट वी नीड मोर Sir, फील्ड। could you please add one more? Yes. Wait a second. Why my headphone is? Sorry, what was your question? Come again. Sir, could you please add one more field, like name? हाँ, अभी क्रिएट करेंगे, अभी तो जस्ट एक ही फील्ड किया, इस पे आई विल क्रिएट 10 more fields. Just created one field. Okay. So I was saying that that's how you can create fields. But for this applicant object, what are the different fields we needed? किसी भी applicant का info capture करने के लिए you need first name. I mean these are the info I needed. So ये सारा हम लोग सेटअप करना है. Last name. मुझे उसका I need to capture the gender, उसका age क्या है, what is the expected salary, उनका एक्सपीरियंस क्या है, राइट, ईमेल, फोन की फील्ड हमें कैप्चर करना है, which country they belong to, that information I would like to capture. At least this much we need so far, right? Let's do this. So first name create किया, now we need to create this last name. So let's go. Last name भी कैसा information है आपका? Last name again is a text kind of information, ठीक है? तो इधर जाते हैं अपने अगेन ऑब्जेक्ट मैनेजर पे. आई थिंक आई एम ऑलरेडी एट द राइट प्लेस, तो यहीं से क्रिएट करते हैं. फिर से जाते हैं, न्यू पे क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं और अपने ऑब्जेक्ट के फील्ड का नाम देते हैं टेक्स्ट. इधर आए और ये यू सेलेक्ट टेक्स्ट एज एन. नेक्स्ट बटे लेट्स स्पेसिफाई द फील्ड लेवल. हमारा फील्ड का नाम क्या है? हमारे फील्ड का नाम है लास्ट नेम. तो अपने को लास्ट नेम दिया. कितने कैरेक्टर्स अलाउ करने हैं? आई एम सेइंग 100 कैरेक्टर्स तक अलाउ करो. आई एम नॉट कीपिंग दिस एज अ मैंडेटरी. इसको ऑप्शनल रखते हैं, यूनिक नहीं रखते हैं. नो एक्सटर्नल आईडी. डिफॉल्ट वैल्यू भी एक चीज है. इसका मतलब समझो आप कि जब बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट का आप रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे, इफ यू वांटेड कि सम डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी ऑटो पॉपुलेटेड, नहीं रहना चाहिए, तो आपके लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है? आई डोंट वांट एनी डिफॉल्ट वैल्यू, तो इधर ब्लैंक ही रखते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक किया, नीचे आते हैं, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स. फिर नीचे आते हैं, नेक्स्ट सेव एंड न्यू भी कर सकते हो. सर डिफॉल्ट वैल्यू क्या बताया आपने? जैसे कि अभी लेट्स डू इट. आप ये रिकॉर्ड जब फॉर एक्सपीरियंस आई विल डू दैट व्हेन यू आर क्रिएटिंग, आई वांट कि सम वैल्यू शुड बी प्री पॉपुलेटेड ओवर हियर. दैट्स व्हाट यू कैन प्रोवाइड इट इज डिफॉल्ट. लेट्स से नेक्स्ट फील्ड आई नीड टू सेट अप इज दिस. सपोज ये एक्सपीरियंस की वैल्यू क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है? एक्सपीरियंस इज व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? इट्स अ नंबर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? एंड आई वांट दैट कि फॉर द नंबर एक्सपीरियंस एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 वहां पे प्री पॉपुलेटेड रहे, ठीक है? यू कैन डू दैट. लेट्स क्लिक ऑन न्यू. इधर आते हैं एंड हियर यू कीप टेक्स्ट एज अ फील्ड, एंड व्हेन वी गो डाउन, लेट्स नॉट टेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज अ नंबर फील्ड, सो वी चूज नंबर एज अ डेटा टाइप. नंबर सेलेक्ट किया यहाँ पे, नीचे आते हैं, नेक्स्ट आई एम गिविंग एक्सपीरियंस. कितना कैरेक्टर्स आपको अलाउ करना है? आई एम सेइंग लेट्स से अप टू 2 कैरेक्टर्स. अगर आपको डेसिमल में भी अलाउ करना है कि 2.153 तो ये दे सकते हो, अप टू 2 डेसिमल प्लेस. मुझे नहीं रखना है, आई एम कीपिंग इट 0. नीचे आते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू आई वांट कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस फील्ड लोड हो रहा है बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू. देखो इसके लिए ना कुछ फॉर्मूलाज भी सेल्स को दे रखता है.
ठीक है, ये सारा हम लोग फार्मूला फील्ड में कुछ फार्मूला भी देखेंगे, बट साइड दिस एडिटर राइट नाउ मुझे जो एक्सपीरियंस है, आई वांट कि एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो, कोई भी रिकॉर्ड हो आपका, ठीक है। जैसे ही लोड होगा तो एक्सपीरियंस में वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, यही डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्रिएट किया, नेक्स्ट क्लिक करो, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स, फिर जाते हैं नेक्स्ट, सेव वेन्यू क्योंकि मुझे और भी फील्ड्स क्रिएट करने, बट व्हेन यू कम ओवर हियर एंड इफ आई रिफ्रेश, जब ये न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो देखो अभी आपके एक्सपीरियंस में वैल्यू प्री पॉपुलेटेड दिख रही है। दिस इज व्हाट आई मीन टू बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ डिफॉल्ट में 0 तो जाना चाहिए अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करो। यू कैन ओवरराइट इट, पर डिफॉल्ट में मैंने बोल दिया कि वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट इट मीन। क्लियर टिल नाउ एवरीवन, ऑल ऑफ यू, और इन डाउट so far? Okay, so no doubt, so let's try to get few more fields. फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया, आई नीड सम मोर फील्ड लाइक जेंडर, एज। अभी जेंडर के लिए अपने को ड्रॉप डाउन जैसा इन्फो आई वांटेड टू कीप, सो हियर वी गो। कैसे आते हैं यहाँ पे, यू ऑलरेडी नो, यू गो टू द सेटअप, सेटअप में जाके फिर आप अपना ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लिक करोगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके अगर ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट सेटअप कर रखे हो तो उसको सर्च करोगे, यहाँ पे इधर जाओगे आप, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप वाले ऑप्शंस पे जाओगे और यहाँ से आप जाके न्यू पे क्लिक करना। अभी जेंडर के लिए आई वांट अ ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मींस सेटअप ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड और वहां से आप यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो नीचे आते हैं एंड व्हाट वी डू इज कि हम यहाँ से पिक लिस्ट एज एन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आई एम सेलेक्टिंग पिक लिस्ट को सेलेक्ट किया, नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अच्छा, पिक लिस्ट में भी दो एक चीज है ग्लोबल पिक लिस्ट का, हाँ वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल पिक लिस्ट। आई एम गिविंग माई फील्ड अ लेबल कॉल जेंडर, ठीक है। अभी जेंडर में व्हाट ऑल ऑप्शंस यू वांटेड दैट यू स्पेसिफाई इन द सेकंड ऑप्शन। जो भी वैल्यू चाहिए न्यू लाइन सेपरेटेड फॉर्म पे प्रोवाइड करो, मेल, फीमेल, अदर्स, ये सारी वैल्यू मुझे चाहिए डिफरेंट डिफरेंट न्यू लाइन्स में प्रोवाइड। अच्छा, एक और चीज है, जैसे भी आप, अच्छा अगर आप वांट कि अल्फाबेटिकली हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। चाहते हो कि मीन्स सारा फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखेगा, पहले फीमेल लिख जाएगा, देन मेल, देन अदर दिखेगा। अगर ये पहला वाला ऑप्शन चेकबॉक्स चेक किया तो यूज द फर्स्ट वैल्यू एज ए डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप मानते हो कि पहला वैल्यू प्री सेलेक्टेड रहे एज ए डिफॉल्ट, ये सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरी एक और बात है कि यू नोटिस जैसे कोई आप पिक लिस्ट ड्रॉप डाउन वैल्यू सेलेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली ये वाला चेकबॉक्स इनेबल है, रेस्ट्रिक्ट द पिक लिस्ट टू द वैल्यू डिफाइंड इन द वैल्यू सेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ड्रॉप डाउन में आपके पिक लिस्ट में जो ऑप्शंस हैं, जो वैल्यूज हैं, इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू प्रोवाइड करना चाहे फॉर दिस पिक लिस्ट, सेल्सफोर्स विल नॉट अलाउ, सेल्सफोर्स आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। यू कैन से कि अच्छा व्हेन यू आर गिविंग ओनली दीज ऑप्शंस सो फ्रॉम द यूआई, इसके अलावा तो कोई वैल्यू हम लोग दे ही नहीं सकते। बट आप सिर्फ यूआई से ही रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो एपेक्स से बैकएंड से करते हैं, एलडब्ल्यूसी करते हैं वहां से बैकएंड से करते हैं। जब मैं डेटा मैनेजमेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ सो देयर आई विल शो यू कि बैकएंड से भी करते हैं। तो व्हेन यू सेलेक्ट दिस फील्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन, तो उससे बेनिफिट ये होगा बाय डिफॉल्ट, जो कि हमेशा रहते ही हैं, 99% हम लोग रखते भी है, कि अगर कोई भी इस फील्ड के लिए वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दिस 3 सेलेक्ट तो आपका वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स, इधर आते हैं एंड फिर इधर करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक। तो अभी जब आप अपने ऑब्जेक्ट पे जाओगे यहाँ पे, इफ यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, क्लिक ऑन न्यू, तो नोटिस आपको ये जेंडर दिख गया, 3 ऑप्शंस, यही 3 ऑप्शंस हमने दिखे, सो दैट इज द थिंग यू कैन सेट अप। सो वी डू नीड टू सेट अप अदर फील्ड्स जो हम लोग देखेंगे एंड इन द कमिंग क्लासेस। For today, those who are new, set up your org for the first time. जो आप existing हो, just explore it once again. I'll set up your object, fields वगैरह set up करो and see. You get yourself familiar with this Salesforce enterprise. But सब लोग अपना developer edition free org create. The link to create the developer free edition I am giving in the chat.
You can pick it up from the chat. Sure, sir. Yes. Yeah, copy this from the chat. Okay. So let's continue tomorrow. Class timing will be 10:30. Okay. Just Neha, I know you have problem, but try to manage. So कोई भी और common time नहीं हो पा रहा सबका. So let's keep 10:30 and resume tomorrow, and we will continue on this. Sir, Okay. like I'll manage few classes, but any possibility if your batch will be completed, it will be shifted to 7 a.m. or afternoon. वही बोल रहा हूँ 7 AM का अपना दूसरे वो कनाडा यूएस वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है उनका फिर इफ आई शिफ्ट देयर बैच टू मॉर्निंग 10 ना तो उनका रात को 2 बज जा रहा है दैट इज द No, प्रॉब्लम so लेकिन कोई ऐसा बैच नहीं है जिनका अब थोड़े टाइम बाद 1-2 हफ्ते में कंप्लीट होने एक वाला है? वीकडेज का है रात का 10 PM का नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से चालू होने वाला ट्यूसडे या वेडनेसडे तो आप एक बार बात कर लेना विजय से ठीक है कैन गाइड यू इसमें एडजस्ट हो सकता है क्योंकि वो भी स्टार्ट ही हो रहा है ओके कल के लिए 10:30 सब लोग ज्वाइन करना एक बार आप बात करना विजय से नेहा अगर टाइमिंग आपका नहीं एडजस्ट हो पा रहा था कि कोई दूसरे बैच में मर्ज कर देंगे ठीक है मुझे लेकिन वीकडेज भी तो नहीं पॉसिबल है ना 10 p.m. व्हाट डू आई से देन 2 p.m. I think was not possible. Any possibility we can do at 12 PM मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा understood. 12 p.m. to the Garupa branch. 2 PM won't be possible for me I am not available at 2 PM No, 12 p.m. sir. we can keep this same timing 6 PM या फिर मॉर्निंग 10:30 ठीक है बट वो फिर सबका प्रॉब्लम हो जाएगा ट्राई टू मैनेज फ्यू डेज 10:30 मैंने बोला ना 10 भी नहीं बोला आई सेड 10:30 सॉरी 10:30 tomorrow you will still have some time it's just a weekend so bear with okay otherwise एक बार विजय से आप बात करना और कोई टाइमिंग शूट हो सकता है but everyone let's keep it 10:30 tomorrow thank you let's meet tomorrow bye